अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर से। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन सी चालें चल रहा है। सिफारतकारी के नाम पर अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतखाने कौन कौन से मकरू धंधों में मुलव्वस हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सबूतों के साथ दुनिया को बता दिया। कहा CPEC को सबूताज करना भारत का हदफ है। दहशतगर्दी के लिए भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कालादम तंजीमों का सहारा लिया है। अफगानिस्तान में तैनात भारतीय सफीर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. The letter in Dari reads that he has already held 4 meetings and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. Revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies. India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition and improvised explosive devices. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. BLA and BLF launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar. RAW officer Anurag Singh planned the attack. India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. पाकिस्तान ने भारत की रियासी दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पर मबनी डोजियर दुनिया के सामने पेश कर दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक कह दिया, अब खामोश रहना हमारे मुफाद में नहीं, आलमी बरादरी भारत को रियासी दहशतगर्दी से रोके। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। मैं समझता हूं कि मजीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में ना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यकीनन इल्म है और होना भी चाहिए कि हिंदुस्तान कम से कम 3 इंटरनेशनल कन्वेंशंस की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहा है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद इस डोसियर की शक्ल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने टू द UN, OIC, P5 countries and others पेश कर रहा हूं। We expect the international community to play its role for peace and stability in the region by compelling India to immediately halt its state sponsorship of terrorism in Pakistan, bring to justice all those involved in financing and supporting terrorism inside Pakistan. गवादर में होटल पर हमला किसने किया, किसके कहने पर किया, कितनी रकम मिली, रॉ का कौन सा ऑफिसर मुलव्वस था। तर्जुमान पाक फौज ने तमाम सबूतों के साथ दुनिया को बता दिया। भारतीय एजेंसी और डॉक्टर अल्लाह नज़र की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने रख दी। BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. भारतीय खुफिया एजेंसी की चालें पाकिस्तानी एजेंसीज ने नाकाम बना दी। साजिश में कौन कौन मुलव्विस था, DGISPR ने सब कुछ शवाहिद के साथ बता दिया। Attacker Hamal Nawaz used an Afghan phone number and was in contact with an Indian phone number during the attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. भारतीय एजेंसी और डॉक्टर अल्लाह नजर की टेलीफोनिक गुफ्तगू के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश कर दिए गए। Direct help to you from our side. Okay, and they will reach you very soon. And because Dubai has become a den of ISI activity now, we would not like to conduct anything through Dubai. DGISPR ने बताया कि रॉ हैंडलर्स की मुस्तकबिल के ऑपरेशन की प्लानिंग के 17 ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं।
मासूम लोगों का खून बहाओ, करोड़ों कमाओ। तफसीलात कुछ ही देर बाद। और दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब कहते हैं पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद नाकाबिले तरदीद हैं। कुलभूषण को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली का कहना है इन सबूतों को हुकूमती सतह पर जिस तरह से पेश किया जाना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब का कहना है नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए हैं। साबका हुकूमत ने कुलभूषण के खिलाफ ठोस शवाहिद मिलने के बावजूद फायदा नहीं उठाया था। बाद शवाहिद आपके पास 2016 के बाद 2017 के, लेकिन पिछली हुकूमत का गालिबन उसकी पॉलिसी यही थी कि भारत का नाम नहीं लेना। नतीजा ये है कि वो शवाहिद आपके पास मौजूद रहे, उनका फायदा नहीं उठाया आपने। आदमी किससे गिला करे। तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने सवाल उठाया कि हुकूमती सतह पर सबूतों को क्यों नहीं पेश किया गया। उन हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ के आज सवाल करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को जो उनको इलेक्ट करते हैं कि आपने ये तमाम चीजें दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली का कहना था कि गुज़िश्ता अदवार में पाकिस्तान में भारत का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। मासूमों का खून बहाओ, करोड़ों कमाओ। हिटलर मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मासूमों का खून बहाने के लिए कितनी रकम और मुराद की पेशकश करती है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जितनी बड़ी कार्रवाई उतनी बड़ी रकम। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। पाकिस्तान के मासूमों का खून बहाने के एवज दरिंदों को बड़ी बड़ी रकूम ऑफर की जाती हैं। 5 करोड़ एक फ्लैट और सारा आने जाने का खर्चा। ठीक है, सही है। ये तो आपके साथ तय था, तो उसका क्या होगा एडवांस का? खुदकुश हमले और कार बम धमाके करने पर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। टारगेट किलिंग पर 10 लाख और हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने पर 50 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, हाई सिक्योरिटी में होगा। अगर आपका बंदा उसको कर सकता है तो मेरी तरफ से 50 लाख आपको जो है काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूंगा। आईईडी धमाके करने वाले अमन दुश्मनों को 10 लाख रुपए तक की रकम ऑफर की जाती है। बुज़दिल भारतीय फौज की एलओसी की सिविल आबादियों पर यलगार। समा ने वादी नीलम की तबाहाल बस्तियां दिखाकर दुनिया को झंझोर डाला। मकीन घर बार छोड़कर हिजरत कर गए। तर्जुमान पाक फौज ने बताया गुज़िश्ता रोज भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। जहां कभी खुशियों की बहार थी वहां अब आग लगी है। भारतीय जारियत का निशाना बनने वाली वादी नीलम की तबाहाल बस्ती में कुछ ना बचा। यहाँ तकरीबन बताया गया कि 14 से 15 घर थे जिनके तमाम जो सामान है, जितना भी सब कुछ जल गया है, मवेशी जल गए हैं। और इसी तरह आप देखें ये दरख्त सारे चारों तरफ जले हुए हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बताया लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया गया। As usual, they have again tried to externalize their internal problems, and they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. DGISPR ने कहा भारत की जानिब से एलओसी पर मुस्तकिल सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। खबरों में आगे देखिए, इलेक्शन मुहिम या प्रोपेगेंडा मुहिम। और किसी की हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को घर में घुस कर मारे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद कहते हैं साबित हो गया कि भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। केस FATF में भेजा जा सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय साजिशें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने दुश्मन को खबरदार और दोस्तों को होशियार कर दिया। आप घबराएं नहीं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को घुस कर नहीं मार सकती। हिंदुस्तान के बयानिए पे जिसने भी काम किया
हिंदुस्तान ने उसको इस्तेमाल जरूर किया। रॉ किसी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है। आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान कहते हैं कि भारतीय वज़रा दहशतगर्दी का एतराफ करते रहे, आज सबूत भी सामने आ गए हैं। शवाहिद जो हमारे पास मौजूद थे उनको पब्लिक किया गया है, उनको बताया गया है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और जिससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी के लिए क्योंकि वो स्पॉन्सरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसके अलावा उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी करता है, सरपरस्ती करता है। सरदार मसूद खान का मजीद कहना था कि भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहदा भेजे जाएं। FATF में भी भारत के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है। रियासत जूनागढ़ का नक्शा पाकिस्तानी झंडे में बदल दिया गया। फलक शिगाफ नारों के साथ भारत से आज़ादी के लिए अमली जिद्दोजहद का आगाज़। नवाब ऑफ जूनागढ़ कहते हैं कि मोदी कान खोलकर सुन लो, जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का झंडा है। मोदी को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद है, हमारी जो तहरीक है फॉर द लिबरेशन ऑफ जूनागढ़, वो हमने शुरू कर दी है। जूनागढ़ इज पाकिस्तान, जूनागढ़ इज पाकिस्तान, जूनागढ़ इज पाकिस्तान, जूनागढ़ इज पाकिस्तान। खबरों में आगे मिलवाएंगे बहादुर बाप की बहादुर बेटी से। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। दुनिया सबूत के होते हुए खामोश नहीं रह सकती। उम्मीद करते हैं कि दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने पर मजबूर करेगी। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि हज़ारों पाकिस्तानियों के कत्ल के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दामात करती रहेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। और वजीर आज़म इमरान खान का सिंध की बहादुर बेटी को फ़ोन। रेशमा को कश्मीर में 4 साला बच्ची की बाजियाबी के लिए जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। सिंध की बहादुर बेटी ने समा को अपनी बहादुरी की दास्तान सुना दी। कहती हैं कश्मीर ज्यादती केस के सफाक मुलजिम को गिरेबान से पकड़ा। गिरेबान से खींच कर आए तो मेरे अबू भी आ गए। कश्मीर की रेशमा, बहादुर बाप की बहादुर बेटी। रेशमा ने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मुल्जिमान को कैसे काबू किया गया, समा से गुफ्तगू में सारा वाकया बताया। उसने देखा, मुझे हाथ मिलाया, उसने कहा बहुत अच्छी है, आप नौकरी करोगी? मैंने बोला हाँ मैं नौकरी करूंगी। फिर उसने कहा निकाब उतारो। थोड़ा सा निकाब उतारा तो उसने मेरे हाथ में ऐसे हाथ डाला। हाथ जो डाला तो मैंने उसको खींच कर गिरेबान से खींच कर आए तो मेरे अबू भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए। बेटी की बहादुरी पर ASI मोहम्मद बख्श को भी फख्र है। हमने अपनी बेटी को भी बोला, बेटी ने बोला बाबा हम तुम्हारे पे कुर्बान हैं, तुम मर जाओगे तो हमारा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ मरेंगे तो इंशाल्लाह फख्र की बात होगी। मेरी बेटी ने भी अच्छा काम करके दिखाया। बहादुर रेशमा ने दलेरी दिखाकर जिस सफाक दरिंदे को गिरफ्तार कराया था, वो पुलिस मुकाबले में अपने ही साथी की गोलियों से हलाक हो चुका है। कश्मीर में ज़्यादती का निशाना बनने वाली 4 साला बच्ची को कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची बहुत सदमे में है, तशद्दुद की वजह से फेफड़े मुतासिर हुए हैं। कुल नफसियाती तौर पे देखा जाएगा, हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं जो इसके साथ शामिल हैं, जो बच्चे की माँ के ज़ाहिर है वो भी उसका सदमा हुआ है और उसके मनफी असरात हुए हैं बहुत ज़्यादा। तशद्दुद की वजह से ऐसा मुमकिन है कि कुछ उसमें लंग्स का रप्चर हो जाता है और हवा भर जाती है, तो उसके लिए वो चेस्ट ट्यूब वहाँ पर डाली गई है। तो इस वक्त कंडीशन बेहतर है, हमने उसको ICU में रखा है, लेकिन किसी वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कराची में जराइम की वारदातों में इजाफा। शादमान टाउन में घर के बाहर से बकरे चोरी कर लिए गए। लांडी मजीद कॉलोनी में दुकान मालिक ने डाकुओं को दूध की बाल्टी दे मारी।
कराची में चोरी, डकैती और लूट मार की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया। शादमान टाउन सेक्टर 14 में भी बकरे चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एक चोर ने घर के बाहर बंधे 3 बकरे बासानी खोले, गाड़ी में डाले और इत्मीनान से लेकर 9-2-11 हो गया। वाक़े का मुकदमा शायर नूरजहां थाने में दर्ज कर लिया गया। उधर लांडी मजीद कॉलोनी में दुकान मालिक की होशियारी काम कर गई। 2 लुटेरे दूध की दुकान में दाखिल हुए तो दुकान मालिक इरादा भांप गया। लुटेरों को असला निकालते देखा तो दूध की बाल्टी दे मारी। पुलिस ने दोनों सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और लोगों एहतियात कर लो, कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 24 घंटे में मुहलिक वायरस ने मजीद 17 अफराद की जान ले ली। मुसलसल 2 रोज से यौमिया 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज भी 2121 केसेस सामने आए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई है। साबिक MQM रहनुमा फारूक सत्तार में भी कोरोना की तशखीस हो गई। रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को घर पर करंटीना कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। कानून साज असेंबली की 23 नशिस्तों पर इलेक्शन का कल मैदान सजेगा। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सजने वाला है। कानून साज असेंबली की 23 नशिस्तों पर अपना नुमाइंदा चुनने के लिए 7 लाख से जायद वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें मद्दे मुकाबिल होंगी। नून लीग के उम्मीदवार इब्राहिम सनाई अब तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। GBA 22 गांचे में तगड़ा मुकाबला मुतवक्का है। IG गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं पुरअमन माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। जिम्मेदारी तो बड़ी अपहिल है, अपहिल टास्क है, लेकिन चैलेंज के मुकाबले में हमारी तैयारियां भी हैं इंशाअल्लाह। रिटर्निंग अफसर का कहना है पोलिंग को शफाफ बनाने के लिए भरपूर इंतजामात किए गए हैं। सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उनके लिए उस हिसाब से अरेंजमेंट की है और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उनके हिसाब से हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हुई है। शफाफ इलेक्शन होंगे जिसके लिए हमारा पूरी हमने जो टीम तरतीब दी है, सिक्योरिटी है, उस हिसाब से बनाया है। इंतखाबी सामान को बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन जाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात ली गई हैं। बिलावल हाउस में शहनाइयां बजेंगी, तफसील थोड़ी देर बाद। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से कबल PP उम्मीदवार मोहम्मद जाफर का बड़ा दावा सामने आ गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कौमी सलामती के इदारों से पीपल्स पार्टी की डील तय होने की बातें करते सुनाई दिए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर ने अपने उम्मीदवार मोहम्मद जाफर के बयान की तरदीद कर दी है। जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी ने खुद को सरेआम बेनकाब कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मोहम्मद जाफर के मुतनाज़िया खिताब की वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तान में गेस्टो लेवल पर एक हंगामी मीटिंग हुआ। इसमें बिलावल भुट्टो साथी थे और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें मौजूद थे। गेस्टो में क्यूबा आर्मी स्टाफ के रिजर्व सदारत, उसमें यह फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए वहाँ पर फैसला हुआ है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने ऐसी किसी भी डील की तरदीद की है। हमारी डील तो रोज अव्वल से ही पाकिस्तान के अवाम के साथ। मोहम्मद जाफर के दावे पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने GB इलेक्शन और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक GHQ में होने वाली मीटिंग की अंदरूनी कहानी खोल दी। मैंने कहा था इसी बिलावल को कि अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी मिनिस्ट्री से फंड देकर मैं हर पोलिंग बूथ पे कैमरा लगाने को तैयार हूँ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। इसने इशारा किया ऐसे कि मुझे आपकी नहीं जलफा की तरफ इशारा किया, मुझे उसकी
गारंटी चाहिए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के बयान पर बिलावल भुट्टो की जानिब से तरदीद का ना आना अफसोसनाक है। विफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने इंकशाफ किया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन्हें डील के लिए मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन हम बिकने वाले नहीं। मुझे ये जरूर पता है, नामों के साथ भी पता है, बल्कि फाइल नंबरों के साथ भी पता है। वो सब मुझे याद है कि किसने यहाँ प्लॉट में घपले किए, किसने माल बनाया, कि कैसे गैस स्टेशन खरीदे गए अमेरिका में। मुझे ये भी पता है कि बंगले कैसे बनाए गए। मुझे ये भी पता है कि वो पैसे इलीगल काम के लिए मेरे शहर कराची में, मेरे सूबे सिंध में किस तरह इस्तेमाल किए गए। मुझे ये भी पता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता रहा, इसलिए मैंने चारों का नाम लिया। मैं आप सारों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो मुझे मैसेज कर रहा है उनके लिए डायरेक्ट मैसेज है। मुझे पता है, मैं इमरान खान का एक अदना सा सिपाही हूँ। आपने, आपके आबा व अजदाद ने और आपकी आने वाली नस्लों ने इतने पैसे देखे नहीं है, इतने प्रिंट नहीं हुए। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, तो मुझे बेचने की और खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। आई एम नॉट फॉर सेल, आई एम नॉट फॉर सेल। भुट्टो की नवासी की चौधरियों में बात पक्की हो गई। बख्तावर की लाहौर के अराई खानदान के चौधरी महमूद से मंगनी 27 नवंबर को होगी। निकाह की तकरीब 29 जनवरी को होगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। बिलावल हाउस में पहली दफा शहनाइयां बजेंगी। शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। बख्तावर के होने वाले शौहर महमूद चौधरी दुबई में सोने और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। महमूद चौधरी का आबाई ताल्लुक अंदरूनी लाहौर भाटी गेट से है। खानदानी जराये से तस्दीक हुई कि बख्तावर ने आसिफ अली जरदारी से महमूद चौधरी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। बख्तावर की मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए ईमेल के जरिए दावतनामे भिजवाए जा रहे हैं। साथ ये हिदायत भी की गई है कि मेहमानों को कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। दावत में शिरकत से 24 घंटे पहले कोरोना की रिपोर्ट बिलावल हाउस भिजवानी होगी। मेहमानों को तकरीब में मोबाइल फोन्स ले जाने भी नहीं दिया जाएगा। ऑफिशियल फोटोग्राफर ही को मंगनी की तस्वीर लेने की इजाजत होगी। मंगनी के 2 माह बाद बख्तावर की रस्म मेहंदी 27 जनवरी को होगी, जबकि निकाह 29 जनवरी को होगा और बख्तावर का वलीमा 30 जनवरी को होगा। संजय साधवानी, समा, कराची। अब ये बताते हैं कि शहर कायद के बासियों के लिए बड़ी सफरी सहूलत कराची सर्कुलर रेलवे की बोगियां रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हो गईं। कराची सर्कुलर रेलवे की बोगियों का आम रेलगाड़ियों से बिल्कुल जुदा रंग और रूप है। अंदर भी साफ़ सुथरा और आरामदेह माहौल है। एहलियाने कराची के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता ये तोहफ़ा रावलपिंडी की कैरेज फैक्ट्री में तैयार हुआ है। रावलपिंडी से चलने वाली इस ट्रेन का अगला पड़ाव लाहौर और हतमी मंजिल कराची होगी, जहां शहर कायद के रहने वाले इस पर सफ़र का लुत्फ़ उठा सकेंगे। और बासलाहियत ख़वातीन के हुनर की इस्लामाबाद में धूम। कदीम सकाफत के रंगों से सजे मलबूसात ने जदीद दौर की कुड़ियों के भी दिल मोह लिए। फैशन मेले पर फरार अब्बानी की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की दस्तकार ख़वातीन की मेहनत को सराहने और मुल्क की सकाफत को दुनिया तक पहुंचाने का मिशन। इस्लामाबाद में सजाया गया रंगारंग फैशन शो। विदेशी मलबूसात पर देसी कढ़ाई, सकाफती रंगों की बहार शिरका ही नहीं मॉडल्स को भी खूब भाई। मैं तो देख के हैरान हूँ, इतनी मेहनत हैंडवर्क तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें सबकी मेहनत शामिल है तो और भी अच्छा लग रहा है। आई एम शॉक्ड कि घर में रह के इतनी टैलेंटेड गर्ल्स हैं, वो इतनी मेहनत इतने प्यार से पूरे दिन लगा के बनाती हैं और मतलब दिल से अच्छे लग रही हैं वो साड़ी और हर चीज। शलवार कमीज में मलबूस हसीनाओं की कैटवॉक ने सर्द शाम को यादगार बना दिया। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।